Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in today's lecture, we are going to discuss closing entries. In our previous lecture, we have gone through the concept of what is the process of closing entries and why they are important in the preparation of the financial statements. Basically, closing entries is the 8th step in the accounting cycle, which includes journalizing and posting the entries to the ledger. Basically, closing entries follow the 4 patterns and 4 accounting heads which should be closed well before the preparation of financial statements for the smooth lineup of the financial statements. The first closing entry which should be done before the preparation of the financial statements is the revenue account. Revenue account should be closed towards the income summary account. Revenue account will be carried from the income statement account and it must be closed towards the income summary account. Second closing entry will follow or will cover expense account to the income summary account. In this step, expense account balance will be moved towards the income summary account and we will bring the expense account balance to the zero. Third step, income summary account to the retained earnings account. इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस को रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट के बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में जो है मूव कर देंगे और फिर हमने जो इनकम समरी अकाउंट को यहाँ पर बैलेंस से फिल किया था जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का बैलेंस मूव किया था इनकम समरी अकाउंट में, थर्ड स्टेप में हम इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस को मूव कर देंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट के बैलेंस में. फोर्थ स्टेप पे डिविडेंड अकाउंट टू द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट. इट मीन्स कि जो डिविडेंड अकाउंट का बैलेंस होगा हम उसको रिटेन अर्निंग के अकाउंट में मूव कर देंगे. क्लोजिंग एंट्रीज में बेसिकली 5 अकाउंटिंग हेड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं. रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट, रिटेन अर्निंग अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट. The 4 accounts, revenue, expense, income summary and dividend account will be zero at the end of the completion of the closing process, whereas only retained earning account will hold some balance at the end of the closing entries, and this balance will move towards the balance sheet account, balance sheet statement. Now, moving further, we will discuss how these closing entries were practically taken. Consider the printing plus adjusted trial balance for the example purpose for the month ended January 31st 2019. Different accounting heads balance have been provided over here. Account title is given, cash, debit balance, account receivables 1200, debit balance. अब आप इस ट्रायल बैलेंस से क्लियरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपका जो डेबिट साइड का बैलेंस है और क्रेडिट साइड का बैलेंस है, कौन से अकाउंटिंग हेड्स बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट साइड पर फॉल करते हैं और कौन से अकाउंटिंग हेड्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट साइड पर फॉल कर रहे होते हैं. तो आपके जितने भी एसेट्स अकाउंट्स हैं या एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं वो सब के सब डेबिट साइड पर फॉल कर रहे हैं, जबकि जो आपके लाइबिलिटीज़ के या रेवेन्यू के हेड्स हैं वो सब क्रेडिट साइड पर फॉल कर रहे हैं. तो अगर हम इसको थोड़ा सा जनरल सा रिव्यू लें इसका, तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स, सप्लाईज, इक्विपमेंट, accumulated depreciation equipment, all are assets and these have the debit balance by default. Moving forward, accounts payable, salaries payable, unearned revenue, common stock, these are having the credit balance. Now you have or we have already discussed that unearned revenue is a liability for the firm or for the organization. Why it is a liability? Because we have received the cash whereas we haven't paid or rendered the services. That's why unearned revenue is the liability and it is falling over here. Then comes the interest revenue and the services revenue. These are considered as the revenue for that's why they have the credit balance. Supplies expense, depreciation expense, salaries expense, utilities expense, all are the expenses and are having a debit balance by default. तो आपका जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है प्रिंटिंग प्लस का, वो एट द एंड ऑफ द मंथ जनवरी उसका बैलेंस कितना आ रहा है? डेबिट साइड पर भी 35,715,
और क्रेडिट साइड पर भी 35,715. Now discuss the first closing entry for the closing process, which we have already said that the first entry will be the revenue account balance will be moved towards the income summary account balance. तो इस वाली एंट्री को डिस्कस करते हैं कि हम रेवेन्यू अकाउंट के बैलेंस को मूव कर रहे हैं इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस को. अब जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस का जो हेड है वो हमारे पास कौन से बैलेंसेस को शो कर रहा है. तो अब अगर हमने रेवेन्यू अकाउंट के बैलेंस को मूव करना है इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस में, तो हमने इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से रेवेन्यू अकाउंट के बैलेंस को फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं. अनअर्न्ड रेवेन्यू भी आ रहा है, इंटरेस्ट रेवेन्यू भी आ रहा है और सर्विस रेवेन्यू भी आ रहा है. अगर हम इसको क्लोजली लुक करें तो अनअर्न्ड रेवेन्यू इज़ अवर लाइबिलिटी, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज ए रेवेन्यू. तो फिर सिर्फ 2 रेवेन्यूज़ जो हैं वो बच जाते हैं, जिनमें से एक है इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड द अदर वन इज़ द सर्विसेज रेवेन्यू. अब इन दोनों अकाउंट्स का बैलेंस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट बैलेंस है. इट मीन्स अवर रेवेन्यू अकाउंट इज़ हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,240. अब हमने इस 10,240 के बैलेंस को मूव करना है टुवर्ड्स द इनकम समरी अकाउंट बैलेंस. तो अगर ये इस वक्त क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो हमने इसको ज़ीरो बैलेंस में मूव करना होगा, तो हम इसको डेबिट कर देंगे. सो द क्लोजिंग एंट्री फॉर द रेवेन्यू अकाउंट टू द इनकम समरी अकाउंट January 31st 2019, अकाउंटिंग हेड विल बी द इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड सर्विसेज रेवेन्यू and we are going to debit it. Reason being that these accounts are having a credit balance by default, और हमने इस क्रेडिट बैलेंस को ज़ीरो पर मूव करना है तो हम इसको यहाँ से डेबिट करेंगे. अब हम इंटरेस्ट रेवेन्यू अकाउंट को और सर्विस रेवेन्यू अकाउंट को $140 और $10,100 से डेबिट कर देंगे और उसके एडजस्टेंट अदर साइड पे इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,240 से टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट्स टू द इनकम समरी अकाउंट. अब जब हमने इस वाली एंट्री को जर्नलाइज किया तो इस जर्नलाइज एंट्री ने हमारे टी अकाउंट्स पर किस तरह से इफ़ेक्ट किया है. अब आप ये देखें कि सर्विसेज रेवेन्यू का जो अकाउंट था वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट बैलेंस में मूव कर रहा था. रीज़न बिंग कि आपका रेवेन्यू जो है वो जब भी इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट होता है. तो आपने जनवरी 10 को 5,500 की, फिर 17 को 2,800 की, जनवरी 27 को 1,200 की और जनवरी 31 को 600 की सर्विसेज रेंडर की थी. उनके अगेंस्ट जो आपने रेवेन्यू रिसीव किया उसने आपका बैलेंस कर दिया 10,100 का. अब एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपने क्लोजिंग एंट्रीज़ को परसू किया तो आपने कहा कि इस 10,100 के बैलेंस को मैंने मूव करना है इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस में, तो फिर मेरा ये वाला जो बैलेंस हो जाएगा और मेरा रेवेन्यू का हेड जो है वो ज़ीरो पर पहुंच जाएगा. तो हमने इस 10,100 के बैलेंस को क्रेडिट साइड पर मूव कर दिया और साथ में लिख दिया January 31st क्लोजिंग एंट्रीज, राइट, 10,100 का. सिमिलरली टी अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी कि आपने जनवरी 31 को 140 का इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव किया और जनवरी 31 को ही क्लोजिंग बैलेंस के थ्रू इस रेवेन्यू अकाउंट को ज़ीरो पर मूव कर दिया और आपने ये जो यहाँ पर डेबिट किया था 140 आपने उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया 140 से. नाउ योर सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट एंड योर इंटरेस्ट रेवेन्यू टी अकाउंट्स आर बोथ शोइंग द ज़ीरो बैलेंस, वेयर इज the T account of income summary account is showing a balance of 10,240. How this is created or formulated that on January 31st जब आपने क्लोजिंग एंट्री को पास किया तो जो आपने क्रेडिट बैलेंस इसमें मूव किया था 10,240 का, उसके टी अकाउंट ने उसी 10,240 को यहाँ पर शो करवाया और आपकी इस वाली क्लोजिंग एंट्री के थ्रू आपने अपने रेवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस था सम होकर 10,240 वो इनकम समरी अकाउंट में मूव कर दिया. सो नाउ वी हैव satisfied with the first statement of our closing entries that revenue account balance will be moved towards the income summary account balance. तो हमने यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट के बैलेंस को इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस में मूव कर दिया. Now move towards the second point where we have said that expense account will be moved to the income summary account.
अब हमने एक्सपेंस अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है इन आवर ट्रायल बैलेंस, सो दैट कि हमें आइडिया हो सके कि हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं और हमने कितना बैलेंस जो है वो इनकम समरी अकाउंट में मूव करना है। अब हम अगर इंटरेस्ट को एक्सपेंसेस को रिव्यू करें तो हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस में ऑन द बॉटम साइड हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ले डाउन होता है। तो हमारे पास सबसे पहले एक्सपेंसेस में क्या चीज़ आ रही है, सप्लाईज एक्सपेंस विच इज़ $100, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस $75, सैलरीज एक्सपेंस $5100 एंड यूटिलिटीज़ एक्सपेंस $300। इट मीन्स ये जो टोटल सम है हम इसको कंसिडर करें एक्सपेंसेस के पर्सपेक्टिव में। हम इस टोटल बैलेंस को कंसिडर करेंगे टुवर्ड्स द मूवमेंट इनटू द इनकम समरी अकाउंट। अब अगर हमने और ज़्यादा क्लियरली आइडिया करें तो हमने कहा था कि हमने इंटरेस्ट रेवेन्यू अकाउंट और सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट को जब मूव किया टुवर्ड्स द इनकम समरी अकाउंट तो इन दोनों का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट में था, हमने इसको डेबिट किया और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। Now look into the supplies expense or the other expenses that they are having a debit balance by default. So अगर इनका बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट आ रहा है तो इट मीन्स कि हमें इनको क्रेडिट करना है सो दैट कि हम इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस को मूव कर इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और फिर इनको डेबिट करेंगे और इनको क्रेडिट करेंगे ताकि हमारे ये वाले जो बैलेंसेस हैं वो ज़ीरो पर मूव हो जाए। Now एक्सपेंस अकाउंट टू द इनकम समरी अकाउंट। जनवरी 31, 2019 को उसने कहा इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो रहा है and your expenses account balances are going to be credited. Why these are credited? Because our trial balance is having a debit balance of these accounts. That's why we are going to credit these accounts in to have the zero balance of these accounts at the end of the closing entries. अब हमने सप्लाईज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस सब का बैलेंस जो था $100, $75 वो मूव किया, वो पहले डेबिट बैलेंस था, अब हमने उसको क्रेडिट साइड पर मूव कर दिया और इन बैलेंसेस का टोटल जो है वो डेबिट कर दिया इनटू द इनकम समरी अकाउंट विच इज़ 5575। अब इस जर्नल एंट्री ने इन अकाउंट्स के टी अकाउंट्स पे किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है कि आपके सप्लाईज एक्सपेंस जो कि इंक्रीज़ होकर डेबिट हुआ था आपने उसको एट द एंड ऑफ द मंथ क्लोजिंग एंट्रीज़ के थ्रू क्रेडिट कर दिया और उसके बैलेंस को ज़ीरो कर दिया, राइट। अब आपने क्लोजिंग एंट्री का बैलेंस जो है 100 यहाँ पे क्रेडिट किया था तो आपने इस अकाउंट के बैलेंस को ज़ीरो कर दिया। सिमिलरली सैलरीज एक्सपेंस जो 5100 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा था आपने उस 5100 को क्रेडिट किया इन योर क्लोजिंग एंट्री और यहाँ पर इस क्लोजिंग एंट्री का इफेक्ट टी अकाउंट पर आया और उसने इसके बैलेंस को ज़ीरो कर दिया। सिमिलरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल मूव टुवर्ड्स द ज़ीरो बैलेंस एंड यूटिलिटीज़ एक्सपेंस विल मूव टुवर्ड्स द ज़ीरो बैलेंस। अब जो टी अकाउंट जो कि बैलेंस शो कर रहा होगा वो होगा इनकम समरी अकाउंट का। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि इनकम समरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, रीज़न बीइंग के एक्सपेंसेस को निल करने के लिए उन्हें क्रेडिट करना पड़ रहा था। अब जब हमने इनकम समरी अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया 5575 से तो हमारे पास ऑलरेडी जो इनकम समरी अकाउंट का टी अकाउंट शो हो रहा था उसमें था कि 10,240 का जनवरी 31 को क्लोजिंग बैलेंस मूव हुआ क्रेडिट का, जो कि हमने प्रीवियस एंट्री के थ्रू मूव किया था 10,240 का, तो वो वहाँ पे स्टक हुआ है और हमने अदर साइड पे डेबिट बैलेंस मूव किया 5,575 का। तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना आ गया $4,665 का। इट मीन्स के पहली दो एंट्रीज़ करने के बाद हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट का बैलेंस जो है वो इनकम समरी अकाउंट में मूव कर गया और हमारे ये दोनों बैलेंसेस जो हैं वो ज़ीरो पर मूव कर गए। अब हमारे पास इनकम समरी अकाउंट में सर्टेन अमाउंट जो है वो पड़ी हुई है और अब हमने इनकम समरी अकाउंट को टू द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट मूव करना है।